Now we have an interesting sum to solve. That's a problem sum. It's really very interesting. If you'll understand it clearly, you will find it very easy. Here the boat goes 25 kilometer upstream and 35 kilometer downstream in 10 hours. Right? Okay. Now you know what is the meaning of upstream. That's opposite to water flow. Right? So let me explain the situation first. Situation is what in this question? See, you must be driving a cycle, right? So here is an example of boat. Suppose this is a boat, right? This is a boat and this boat is moving in this direction. And the speed of a boat is 25 suppose, right? ये जो मैं example दे रहा हूं that is not related with this question. This is just for understanding. See, boat ये direction के अंदर जा रही है and its speed is 25 and air जो है वो ये direction में आ रही है. Air is coming in this direction and its speed is 10 here kilometer per hour. So इसकी actual speed जो है वो कम हो जाएगी, right? If you are using a cycle and going to the school by cycle, तो जब भी बहुत जोर की हवा आती है तो your speed decreases because it stops you, air stops you. So here its actual speed would be 25 minus 10 and that's 15, right? That's 15. And if your boat is here going in this direction with the same speed 25 and this air is following, that's 10 kilometer per hour, तो speed क्या हो जाएगी 25 plus 10 that will be 35, right? So here we have a boat and we have to find out the speed of a boat and speed of a speed of an air, right? दोनों चीज हमें find out करनी है. Let's see the question now. The boat goes 25 km upstream and 35 km downstream in 10 hours. In 15 hours, it can go 40 km upstream and 49 km downstream. Determine the speed of the stream and the speed of a boat. Here this is about stream यानी speed of water की speed है. हमने air का example अभी समझा था, but air की जगह पे it can be a water also, right? अगर water और boat इधर जा रहा है, boat भी ये direction में आ रहा है तो speed increase होगी. अगर boat ये direction में आ रही है, water ये direction में आ रहा है तो speed कम हो जाएगी. So let's suppose कि जो still water यानी स्थिर पानी, still water के अंदर boat की जो speed है वो x है and जो पानी की speed है वो y है. Now upstream or downstream, I think you know now what is upstream, what is downstream. So let's come here. Now boat speed in the direction of stream की direction में अगर boat जा रही है तो ये दोनों का plus x plus y, right? I explained earlier कैसे हुआ वो. And opposite में है तो x minus y. Now this is the speed का formula क्या है? तो बहुत easy example से मैं समझाने की try कर रहा हूँ. If I say कि अहमदाबाद से मुंबई यानी बॉम्बे 500 किलोमीटर far away है and मेरी ट्रेन की स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, तो मुझे पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो मुझे पहुंचने में 5 आवर्स लगेंगे, राइट? तो मैंने क्या किया? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट? सो स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. नाउ टाइम को ये साइड ले लो, स्पीड में को डिवाइड में ले लो. सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट? ओके, नाउ 25 किलोमीटर जो है वो अपस्ट्रीम जाती है, तो अपस्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा? तो टाइम का फॉर्मूला में वैल्यू रख देते हैं. सो T1 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है, कितना अपस्ट्रीम जाती है 25 किलोमीटर. ओके, अपस्ट्रीम में स्पीड कितनी होती है तो उसने ऊपर डिसाइड कर लिया है. अपस्ट्रीम ये रहा, उसमें स्पीड है x माइनस वाई, यानी ये जो है इतना टाइम लगेगा. जब x y की वैल्यू पता चलेगी तभी टाइम पता चलेगा. ओके, सेम वे 35 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में क्या होता है? जो डायरेक्शन में पानी जाता है वही डायरेक्शन में बोट जाती है. 35 अपॉन x प्लस वाई बिकॉज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही फॉर्मूला वैल्यू रखी. दूसरी सिचुएशन, ओके, नाउ ये दोनों टाइम का प्लस क्या है तो उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 25 किलोमीटर अपस्ट्रीम 35 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम मिला के 10 घंटे लग रहे हैं. यानी कितना टाइम किसमें लग रहा है मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना पक्का पता चल गया कि ये T1 T2 का टोटल जो है वो 10 है, राइट? सो दोनों का टोटल 10 है, यानी ये दोनों का मैं प्लस कर रहा हूं. ठीक है, अभी ये हमारा इक्वेशन नंबर 1. दूसरी सिचुएशन क्या दी है कि 15 आवर्स में क्या होता है 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो 40 अपॉन x माइनस वाई. x माइनस वाई कहां से आया? तो स्पीड, दिस इज डिस्टेंस 40 दैट इज गिवन हियर एंड स्पीड इज x माइनस वाई प्लस क्या हो रहा है 49 डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या होगी x प्लस वाई, बिकॉज जो डायरेक्शन में पानी जा रहा है, स्ट्रीम जा रहा है, पानी जा रहा है, वही डायरेक्शन में बोट जा रही है. दोनों का टोटल है 15 घंटे 15 आवर्स. सो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2, राइट? नाउ
अभी तक जो हम कर रहे थे उसी तरह इसको सॉल्व करेंगे. 1/x - y बराबर ले लेंगे a, 1/x + y बराबर ले लेंगे b. So now this would be 25a in first equation. Let's talk about the first equation. So 25a 35b is equal to 1, is equal to 10, and in second equation 40a 49b is equal to 15. Now equation 1 को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 40 से, और 2 को 25 से. So let's multiply. This is the multiplication. If you don't understand this, you just try it in your notebook. और अगर ये वीडियोस आप लोग सिर्फ देख रहे हो तो you will not be able to learn mathematics properly. You just view the video and try to solve it by yourself. अगर स्कूल ट्यूशन में जिस तरह से आप लोग नोटबुक बनाते हो उसी तरह नोटबुक बनाओ, and every day you learn from this and you practice this. If you don't understand anything, my contacts number are on the screen in blue box, so you can contact me on WhatsApp or something else. So I will try to help you out. Okay, now sign change हो गए. So 1000a cancel. This is 1400 और उसमें से 1225 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? That will be 175, and here 25 only plus 25. Now 175 वो साइड जाएगा तो डिवाइड में, बिकॉज ये b के साथ मल्टीप्लाई में, तो ये साइड जाएगा तो डिवाइड में. सो दैट विल बी 1/7 बिकॉज 25 7 175. नाउ b की वैल्यू मुझे मिल गई, उसको हम इक्वेशन 1 या 2 कोई में भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं. सो यहां पे b की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, राइट. सो 7 5 35, सो 25a + 5 = 10. वो जो 5 है वो साइड चला गया, सो 10 - 5, सो दैट्स 5. 25 ये साइड आएगा तो डिवाइड में, सो दैट विल बी 1/5. तो a और b की वैल्यू मुझे मिल गई. नाउ सबसे पहले मैंने क्या सपोज किया था? तो मैंने 1/x + y बराबर b लिया था. इसके अंदर हम क्या करेंगे? सो इसके अंदर हम b की वैल्यू रख देंगे, दैट्स 1/7. सो यहां 7 इधर आ गया, x + y इधर, राइट. सो x + y = 7. दैट्स माय इक्वेशन नंबर 5. हियर a 1/5, 5 ये साइड, x - y इधर. सो x - y = 5. दैट्स माय इक्वेशन नंबर 6. नाउ दिस 6 इज नॉट -6, दिस इक्वेशन नंबर 6. सो इधर 6 लिखा हुआ है. नाउ इसको हम सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे बाय एज्यूमिंग कि ये हमारा क्वेश्चन है, ये दोनों इक्वेशन क्वेश्चन में दिए हुए. सो x + y बराबर 7, y को अकेला कर दिया 7 - x. इसको हम 6 में सब्सटीट्यूट करेंगे. 6 ये है, उसमें y की जगह में लिख दिया 7 - x. सो x -7 ब्रैकेट के बाद माइनस है तो अंदर साइन चेंज होगा, दैट्स +x. सो -7 ये साइड जाएगा, and x + x, 2x = 12, x = 6. नाउ x = 6 को हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे. 6 वो साइड जाएगा तो माइनस. सो माय सॉल्यूशन इज 6 and 1. ये जो स्पीड है 6 km/h, दैट्स फॉर बोट, एंड जो 1 km/h है दैट्स फॉर स्ट्रीम. सो आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस सम करेक्टली.